Now here, accountancy, standard 11th, part 2, chapter 5, final account. Okay. So, final account is the last step. Okay. Uh, last step of written accountancy. Okay. जॉब अकाउंट लिखते हो उसमें लास्ट स्टेप फाइनल अकाउंट है. ओके, बट इट्स नॉट अ एंड ऑफ अकाउंट. ओके, so just is the last step to file your accounts in income tax. Okay, so first of all, the first step in accountancy, that is the entry. From the bill you have to make an entry. Okay, after making entry you have to transfer the entry in ledger and posting. Okay, so posting into ledger account, and after that you have to close all the ledger account and transfer to trial balance. Okay, and trial balance should be tally, and after trial balance you have to make here final account. Okay, now see here, some entries are not written. Okay, some entries are missing. Okay, in that case you are taking the help of adjustment. You are taking the help of adjustment. इसका मतलब ये है कि आपने ट्रायल बैलेंस सब कुछ बना दिया. ओके, पर कुछ एंट्री रह गई. ओके, 4-5 एंट्री और रह भी जाती है. ओके, क्योंकि होता क्या है कि फॉर एग्जांपल द सैलरी ऑफ द मंथ ऑफ मार्च. ओके, और लाइट बिल ऑफ द मंथ ऑफ मार्च, तो सेम मंथ में पेमेंट नहीं होता है उसका, नेक्स्ट मंथ में पेमेंट होता है. ओके, तो कुछ ना कुछ एंट्री तो रहने वाली ही है. ओके, क्योंकि सैलरी ऑफ द मंथ ऑफ मार्च विल बी पेड इन अप्रैल. ओके, तो क्या हो जाएगा, लास्ट मंथ का सैलरी आउटस्टैंडिंग हो जाएगा. ओके, तो उसकी एंट्री आपको देनी होगी एडजस्टमेंट में. ओके, लाइट बिल है. ओके, सो सपोज फेब्रुवरी मार्च का लाइट बिल है, वो आपको 2 महीने के बाद जो होता है वो लाइट बिल पे करना होता है. ओके, तो इफ यू आर पेइंग इन अप्रैल. ओके, तो वो आपने पे किया है फेब्रुवरी मार्च का, अप्रैल में पे किया है, तो उसका भी एक आपको एडजस्टमेंट एंट्री करना होगा. ओके, सो दिस आर द एग्जांपल्स. ओके, कि वहाँ पे एडजस्टमेंट में आपको क्यों करना है, विद द हेल्प ऑफ एडजस्टमेंट कुछ एंट्री जो फाइनेंशियल ईयर की रह गई है. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ एडजस्टमेंट यू हैव टू मेक एंट्री इन द करंट फाइनेंशियल ईयर. ओके, तो उसके लिए एडजस्टमेंट होता है. ओके, so in final account basically there are 3 types of accounts. First one is trading account, second one is profit and loss account, and last one is balance sheet. Okay, last one is balance sheet. So today we discuss one by one each and every account in detail. Okay, so first is trading account. In trading account debit side you have to record the purchase and purchase expenses and manufacturing expenses. Okay, before 5 years, there is separate account of manufacturing, but at present, they combine the trading account and manufacturing account. Okay, so you are not made separate account for manufacturing. Okay, so in trading account, debit side you have to record here purchase expenses, purchase and purchase expenses, and manufacturing expense. And trading account credit side, you have to record sales, closing stock, scrap value. Okay, so if credit side is more and debit side is less, you will receive here gross profit, and debit side is more and credit side is less, you will receive here gross loss. Okay, that will be transferred to profit and loss account. In profit and loss account, debit side, you have to record first of all gross loss. Okay, if there is. Okay, and in debit side there are 4 main headings. First one is uh, administration expenses. Second one is selling and distribution expenses. Third one is financial expense. Fourth one is loss or other expenses. Okay. And on credit side, only profit and gains of business is record in profit and loss account, credit side. Okay. So if credit side is more and debit side is less, you receive here net profit. Net profit will be added to balance sheet, add to capital. If there is net loss, if debit side is more and credit side is less, there is net loss. It will be minus from capital. Okay. In balance sheet, you have to record first of all capital and liability. Capital means whatever invest in the business is called capital. Okay, so capital and liabilities record first of all,
and on right side you have to record assets. Okay, so capital and liabilities record on left side in balance sheet, and on right side you have to record assets. Because balance sheet is statement, not an account, so you can't say that debit side or credit side. Okay, balance sheet, we can't say debit side or credit side because balance sheet is a statement, not an account. Okay, so in balance sheet, right side you have to record all the assets of the business, and on left side capital plus liability. So it should be equal. Okay, at last your balance sheet should be equal. Okay, so these are the uh, formulas of final account. Now we discuss trading account in detail. Okay, so here first of all, in trading account you have to record here opening stock. Okay, so when you started a business, in that case, whatever stock with the whatever stock we started business, that is called opening stock. But if your business is continue, okay, if your business continue, so on 31st March is the last day of financial year. So in that case, whatever closing stock we have, okay, that will be the opening stock for the next morning, 1/4 means first day of April. Okay. First day of April, that is your opening stock then. Okay. So 31st March is the last day of the financial year, and whatever stock we have, okay, on 31st March on evening 6 o'clock, next day morning, that will be the opening stock. Okay. So first of all, we record here opening stock. Okay. Second one is now purchase. So whatever purchase we are paid in whole year, okay, that will be recorded here. फिर पूरे साल में आपने जो भी परचेस किया, चाहे वो कैश हो, क्रेडिट हो, वट एवर. So all the purchase. Uh, so first of all, we close the ledger account of purchase, and whatever balance is there, okay, you have to record in trial balance, and from trial balance you have to record here trading account डेबिट साइड. तो आपको ट्रायल बैलेंस में दिया होगा परचेस डेबिट साइड. ओके, तो जो परचेस डेबिट साइड दिया है वो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखना है. वैसे ही आपका सेकंड अकाउंट होगा परचेस रिटर्न. ओके, तो क्या करना है आपको, परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस करना है. ओके, इसका मतलब ये है कि जो भी आपने परचेस किया था उसमें से कुछ जो गुड्स था, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू आवर सैंपल और इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू आवर एग्रीमेंट. ओके, तो उसको आपने वापस कर दिया. ओके, दैट इज कॉल्ड परचेस रिटर्न. ओके, तो परचेस रिटर्न क्या करना है आपको, माइनस करना है. परचेस माइनस परचेस रिटर्न. ओके, तो क्या होगा, आपको जो भी अमाउंट होगा परचेस में से माइनस करके आपको वो अमाउंट बाहर लिखनी है. परचेस माइनस परचेस रिटर्न. नेक्स्ट वन इज नाउ गुड्स गोन आउट फ्रॉम द बिजनेस अदर देन सेल्स. ओके, सो पहले इसको रिकॉर्ड किया करता था ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट सेल. ओके, बट एट प्रेजेंट वी आर डिडक्टेड फ्रॉम द परचेस. ओके, so there are 5 ways. In that case, your goods gone out from the business other than sales. Okay, इसका मतलब ये है कि आप सेल्स नहीं कर रहे हो, फिर भी आपका जो गुड्स है वो बिजनेस में से बाहर जा रहा है. Okay. आप सेल्स नहीं कर रहे हो, फिर भी आपका जो गुड्स है वो बिजनेस में से बाहर जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन इज नाउ फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज ड्राइंग. ओके, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज. ओके, ड्राइंग. ओके, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, तो आपको परचेस में से माइनस करना है. ओके, ओके, सो फर्स्ट वन इज गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज. गुड्स बिजनेस से बाहर गया तो उसको परचेस में से माइनस कर दो. सेकंड वे, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर. ओके, आपका जो गुड्स है वो आग से जल गया. ओके, सो दैट विल बी माइनस फ्रॉम परचेस. ओके, थर्ड वे, गुड्स गिवन फॉर एडवर्टाइजमेंट. ओके, यानी आपका जो गुड्स है आपने वो सैंपल्स बनाए उसके, और ऐड करने के लिए आपने वो सैंपल्स फ्री में बेचे पब्लिक को. ओके, दैट इज कॉल्ड गुड्स गिवन फॉर एडवर्टाइजमेंट. ओके, बराबर. फोर्थ वन, गुड्स गिवन फॉर चैरिटी. ओके, आपने आपका जो गुड्स है, हर साल जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है कुछ ना कुछ डोनेट करती है. ओके, बराबर. तो आपकी कंपनी ने सपोज गुड्स डोनेट किया है,
तो वो परचेस में से माइनस करना है. ओके, दैट इज कॉल्ड गुड्स गिवन फॉर डोनेशन. ओके, फिफ्थ वन इज गुड्स लॉस ड्यू टू थेफ्ट. ओके, आपका जो गुड्स है वो चोरी हो गया. ओके, बराबर, तो भी आपका जो गुड्स है वो कम हो जाएगा, इसलिए आपको परचेस में से माइनस करना है. ओके, सो दीज आर द बेसिकली 5 ways which goods gone out from the business other than sales. आपने सेल्स नहीं किया, फिर भी आपका जो गुड्स है वो बिजनेस में से बाहर गया. ओके, सो बेसिकली these आर द 5 ways जहाँ पे आपका जो गुड्स है वो कम हो रहा है. ओके, बराबर. उसके बाद जो हेडिंग है, तो ये आपको माइनस करना है. उसके बाद इट इज गिवन दैट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज. ओके, तो आपको क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड परचेज रिकॉर्ड करना है और परचेज एक्सपेंसेस आपको रिकॉर्ड करना है. तो पहला परचेज एक्सपेंस कौन सा है आपका, वेजेस. ओके, वेजेस यानी क्या है कि जो आपने लेबर को पेमेंट किया है, दैट इज कॉल्ड वेजेस. अभी आपने सपोज परचेज किया गुड्स. ओके, बराबर, तो आपका जो गुड्स है वो ट्रांसपोर्ट में आएगा. ट्रांसपोर्ट में से आपने जो नीचे उतारा, ओके, लेबर्स ने उसको जो आपने लेबर्स का जो पैसा दिया, ओके, तो दैट इज कॉल्ड वेजेस. यानी एक एग्जांपल है, यानी आपके फैक्ट्री में भी लेबर्स काम करते होंगे, सो वॉट एवर वेजेस वी आर पेड टू देम, ओके, तो वो आपको वेजेस में रिकॉर्ड करना है. सो इट शुड बी रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. ओके, बताओ, तो आपने जो भी वेजेस पे किया है तो वो आपको लिखना है यहाँ पे अंडर द हेडिंग वेजेस. ओके, नेक्स्ट वन इज नाउ कैरेज इनवर्ड. कैरेज इनवर्ड क्या होता है, व्हेन वी आर परचेसिंग गुड्स, इन दैट केस द ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस पेड बाय अस, दैट इज कॉल्ड कैरेज इनवर्ड. तो जो भी आप ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस पे कर रहे हो, ओके, जो भी आप ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस पे कर रहे हो एट द टाइम ऑफ परचेज, तो उसको क्या कहते हैं, कैरेज इनवर्ड कहते हैं. क्या कहते हैं, कैरेज इनवर्ड कहते हैं. नेक्स्ट वन इज नाउ रेलवे फ्रेट. ओके, रेलवे फ्रेट का मतलब क्या है कि जो भी गुड्स आपने परचेज किया है बाय विद द हेल्प ऑफ रेलवे. ओके, और पूरे साल में आपने जो रेलवे को, अभी गुड्स तो फ्री में आएगा नहीं. ओके, तो जब भी आप गुड्स परचेस करोगे, ओके, तो वो बाय सपोज ट्रेन आ रहा है, ओके, फ्रॉम बॉम्बे टू अहमदाबाद बाय ट्रेन आ रहा है, ओके, तो उसका आपको फ्रेट देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड रेलवे फ्रेट. रेलवे फ्रेट यानी उसका जो भाड़ा है, ओके, दैट इज कॉल्ड रेलवे फ्रेट. ओके, बराबर. तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो आपका है बॉम्बे टू अहमदाबाद, ओके, दैट इज कॉल्ड रेलवे फ्रेट. ओके, नेक्स्ट वन इज नाउ ऑक्ट्रॉय. ओके, ऑक्ट्रॉय अभी बंद हो चुका है. ऑक्ट्रॉय, इट इज अ ओल्ड टैक्स. ओके, एट प्रेजेंट it is uh, it is closed by the government. Okay, but in some cities now at present also it is continuing. Okay, but in only few cities of India. Okay, तो ऑक्ट्रॉय होता क्या है कि सपोज आप किसी सिटी में एंटर होते हो, okay, तो वो सिटी का आप जो रोड है लाइट से यूज करते हो, ओके, तो उसका आपको टैक्स पे करना होता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्ट्रॉय. ओके, फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव बिजनेस इन अहमदाबाद, ओके, नाउ सपोज इफ यू आर सेलिंग गुड्स इन बड़ौदा, सूरत, बॉम्बे, ओके, तो जैसे आप सिटी में एंटर हो गए आप, ओके, तो आपको वो ऑक्ट्रॉय पे करना होगा, बराबर. आपने देखा होगा कि जो भी सिटी है तो जो हाईवे होता है वो बाईपास होता है. सिटी के अंदर अंदर, अंदर से कभी भी हाईवे पास नहीं होता है, okay, बराबर. आपने देख मार्क किया होगा कि जो हाईवे होता है वो सिटी से बाईपास होता है. ओके, सिटी के अंदर अंदर कभी हाईवे एंटर होता नहीं है, वो ऑलवेज सिटी से बाहर ही होता है, बराबर. इसलिए ऑक्ट्रॉय जो है आप सिटी के अंदर जब एंटर करोगे तब आपको पे करना है. ओके, और हाईवे स्पेशली यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन. ओके, तो गवर्नमेंट ने हाईवे क्यों बनाए, फॉर ओनली फॉर ट्रांसपोर्टेशन, फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट. ओके, बराबर. तो वहां से जो है हाईवे से तो आपका जो गुड्स है वो ट्रांसपोर्ट होने वाला ही है, ओके, बराबर है. तो आप सिटी के अंदर एंटर होते हो तो उसका जो रोड आप यूज करते हो तो उसका आपको टैक्स पे करना है, दैट इज कॉल्ड ऑक्ट्रॉय. ओके, बट ऑक्ट्रॉय अभी बंद हो चुका है. ओके, सो ये आपने जो दिया है वो नेक्स्ट आने वाले न्यू प्रिंट में ऑक्ट्रॉय शायद नहीं आएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज नाउ कस्टम ड्यूटी. ओके,
इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपको कस्टम ड्यूटी पे करना है when we are importing and exporting your business. In that case, you have to pay custom duty. Okay. Next one is now lorry freight. Okay. Lorry freight यानी same thing, that is a carriage inward. Okay. बराबर? तो जो लॉरी भाड़ा है, okay, whatever paid in financial year, that is called lorry freight. Okay. Next one is now dock charges. Okay. Sorry, port charges. पहले पोर्ट चार्जेस के बाद डॉक चार्जेस डिस्कस करेंगे. सो पोर्ट चार्जेस क्या होता है कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, इन दैट केस यू मस्ट यूज द पोर्ट. ओके, बराबर. पोर्ट से ही आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है. पोर्ट के अलावा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड इलीगल स्मगलिंग. ओके, बराबर. तो जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा वो पोर्ट से ही होगा. ओके. जैसे रेलवे स्टेशन होता है, जैसे रेलवे स्टेशन होता है किसके लिए? गाड़ियों के लिए. हो गया. सो ट्रेन्स आर स्टॉप ओनली ऑन रेलवे स्टेशन. कभी भी वो बीच में खड़ी रहती नहीं है. ओके, पैसेंजर को लेने के लिए और ड्रॉप करने के लिए. हाँ, कुछ सिग्नल नहीं मिला तो ही वो खड़ी रहती है. अदरवाइज पैसेंजर के लिए सिर्फ रेलवे स्टेशन पे ही अलाउ है. वहां से ही पैसेंजर एंटर होंगे और बाहर निकलेंगे. बराबर. वैसे ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपको पोर्ट से ही आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है. ओके. सो बेसिकली ports are made by government and private companies. Okay, बराबर. Ports are made by generally government. Okay, but now onwards it may be on privatization. Okay, but अभी तक तो जो पोर्ट थे सारे वो गवर्नमेंट ही पे बनाती थी. ओके, बराबर. सो पोर्ट चार्जेस यानी आप जो पोर्ट यूज कर रहे हो, ओके, एक्सपोर्ट के लिए कि इंपोर्ट के लिए, ओके, तो उसका आपको चार्ज पे करना है. जैसे आप रेलवे स्टेशन को किसी को रिसीव करने जाते हो तो आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेना पड़ता है. ओके, आपके कोई गेस्ट आ रहे हैं बॉम्बे से अहमदाबाद. ओके, तो अहमदाबाद स्टेशन पे आप उनको रिसीव करने के लिए एंटर होते हो अंदर. ओके, तो आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेना पड़ेगा. चार्जिंग इज ₹10 to ₹20. बराबर. दैट इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म टिकट. वैसे ही पोर्ट आप यूज कर रहे हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए. ओके, तो वहां पे आपको उसका जो पोर्ट चार्जेस है वो पे करना है. सो वॉट एवर पोर्ट चार्जेस इन फाइनेंशियल ईयर, that should be recorded on trading account debit side. Okay. Next one is now dock charges. Okay. तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ही आपका जो डॉक्यूमेंट्स होता है, ओके, बराबर, तो उसका एक बड़ा फाइल होता है. ओके. तो डॉक चार्जेस यानी एक डिपार्टमेंट होता है कि जहाँ पे आपका जो गुड्स है वो वहाँ पे रहता है. ओके, बराबर. तो उसका जो गुड्स का जो आप वहाँ पे रखते हो उसका आपको पेमेंट करना पड़ता है. दैट इज कॉल्ड डॉक चार्जेस. ओके. क्लियरिंग चार्जेस. तो जैसे आपका सपोज आपने इंपोर्ट किया है, ओके, बराबर, तो सबसे पहले क्या होगा, वो जो गुड्स है वो गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट चेक करेगा. ओके, सब चेक करने के बाद आपको वो पास ऑन किया जाएगा. ओके. सो द चेक बाय द गवर्नमेंट पीपल्स. ओके, तो उनका आपको जो एक्सपेंस है, उनका जो चेकिंग करने का जो चार्जेस है वो पे करना होता है. दैट इज कॉल्ड क्लियरिंग चार्जेस. ओके, बराबर. तो डायरेक्टली आपको हैंड ओवर नहीं किया जाएगा. आपको गवर्नमेंट लगता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ओके, that people check your goods. Okay, that is called clearing charges. Now damages. Okay, damages का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल कि सपोज इफ यू आर परचेजिंग गुड्स फ्रॉम बॉम्बे. ओके, तो बॉम्बे से आपने परचेज किया है. फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन द गुड्स आर कमिंग रिच टू अहमदाबाद. ओके, इफ यू आर स्टेइंग इन अहमदाबाद एंड यू आर परचेजिंग गुड्स फ्रॉम बॉम्बे, सो बॉम्बे से गुड्स निकल चुका है और आपका जो गुड्स है वो अहमदाबाद हाईवे, सतकेश हाईवे पे आ गया. ओके. सो ट्रांसपोर्ट कंपनी क्या करती है, अपने गोडाउन्स रखती है. ओके, जो भी ट्रांसपोर्ट कंपनी होती है वो अपने गोडाउन्स रखती है, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन इज गोइंग ऑन एट नाइट. ओके, बराबर. तो जितने भी ट्रक्स होते हैं वो रात को ही चलते हैं. ओके, दिन में नहीं चलते, बहुत कम चलते. ओके, ऐसा क्यों होता है? हाँ, जो ट्रक्स है वो रात को ही चलते हैं. ओके, दिन में कम चलते हैं, ऐसा क्यों है? एनीवन प्लीज? दिन में ट्रैफिक ज्यादा हो. हाँ, तो अभी क्या होता है कि दिन में जो पब्लिक होती है,
ओके। जो प्राइवेट प्राइवेट जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जैसे आपके कार है, ओके, बराबर है। तो आप क्या करोगे, दिन में ट्रैवल आप ड्राइविंग करोगे, रात को नहीं करोगे, ओके, बराबर। तो दिन में क्या होता है, ट्रैफिक ज्यादा होता है, बराबर। और ये ट्रक्स के लिए क्या होता है, ट्रक्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। नहीं, आप रात को आप देखोगे तो 10, 15, 20, 25 ट्रक एक साथ चलते होंगे, ओके, बराबर। तभी ये जो सारा ट्रांसपोर्टेशन रात को और दिन का पूरा मिक्स हो जाएगा, तो रेलवे हाईवे पे क्या हो जाएगा, जाम हो जाएगा, बराबर। इसलिए वो बेसिकली जो प्रोफेशनल्स होते हैं, ओके, वो रात को ही ट्रैवल्स करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के, बराबर। सो अभी सपोज बॉम्बे से अभी आपका जो गुड्स है वो आ गया, ओके, रात को आ गया, बराबर। सुबह सुबह रीच हो गया यहाँ पे अहमदाबाद में, ओके। तो बाद में उन्होंने आपको कॉल कर दिया, भाई आपका जो गुड्स है आके कलेक्ट करके जाओ। तो वो ट्रक से तो आपका जो गुड्स है वो गोडाउन में शिफ्ट हो जाएगा, ओके, बराबर। तो जो भी आपका जो गुड्स आया है ट्रक में, ओके, वो ट्रक में से आपका जो गुड्स है वो गोडाउन में शिफ्ट हो जाएगा, ओके। और सपोज आपको कॉल कर दिया, भाई आपका जो गुड्स लेके जाओ, बट आप किसी काम में फंस गए, ओके, आपको टाइम नहीं मिला, आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 दिन आप नहीं गए, ओके, अदरवाइज 1 वीक आप नहीं गए वहां पे लेने के लिए, ओके, बराबर। तो वो पर डे चार्ज लगाते हैं, ओके, क्योंकि उनको जब तक आपको हैंड ओवर नहीं करेंगे, द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन देयर हैंड, ओके, बराबर। तो जब तक आपको आपका गुड्स नहीं मिलेगा और सपोज डिस्ट्रॉय हो गया, तो उनको उतना पैसा देना पड़ेगा आपको, बराबर, क्योंकि वो गुड्स आपका है। जब तक वो रिसिप्ट और गुड्स आपको हैंड ओवर नहीं करेंगे, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गुड्स को संभालेगी, ओके, बराबर। तो उसका भी वो अच्छी तरह ध्यान रखते हैं, प्रॉपरली वेयर हाउस में उसको स्टोर करते हैं, ओके। वहां पे उसका इंश्योरेंस भी होता है, सपोज आग लग गई, फ्लड आ गया, ओके, तो आपका जो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, तो वो आपको पैसा पे कर देंगे। तो जो इंश्योरेंस निकालते हैं गोडाउन का, ओके, उनको उनका प्रीमियम पे करना पड़ता है, तो उनको भी एक्सपेंस होता है। इसलिए वो क्या करते हैं, पर डे चार्ज लगाते हैं। सपोज इफ यू आर नॉट ब्रिंगिंग दैट गुड्स फॉर 5 डेज, तो वो आपको 5 दिन का वो आपको चार्ज पे करना होगा, दैट इज कॉल्ड डैमरेजेस, ओके, बराबर। तो पूरे साल में आपने ये चार्ज डैमेजेस जितना भी चार्ज किया है, ओके, दैट शुड बी रिकॉर्ड ऑन ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड, ओके। नेक्स्ट वन इज नाउ धर्मायो, ओके। व्हाट इज नाउ धर्मायो? धर्मायो ने क्या होता है कि जिससे कोई लेबर है, आपको लेबर का पेमेंट जो है एवरी डे पे करना है, ओके। लेबर का कोई सैलरी नहीं होता है, बराबर। लेबर का जो पेमेंट है वो आपको शाम को 6 बजे उसको पेमेंट करना ही है, दैट इज द लॉ, ओके, बराबर। तो अभी जो लेबर लॉ है उनका जो रेम्युनरेशन है वो बढ़ गया है, ओके। वो उनका चार्ज पहले 100 रुपीज था पर डे का, अभी 300 रुपीज हो गया, ओके। आपको 300 चार्ज पे करना है लेबर को, ओके, और 1 टाइम का लंच देना है, ओके, दैट इज कंपल्सरी, बराबर। सुबह का चाय पानी का खर्चा और दोपहर का लंच, ओके, वो आपको देना पड़ेगा, दैट इज लेबर लॉ, ओके। पहले वो 100 रुपया था, अभी वो इंक्रीज होके 300 रुपया हो गया, बराबर। इसलिए दैट्स व्हाई द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज इंक्रीज नाउ, इसलिए जो मकान के जो रेट्स है वो बढ़ क्यों गए, एक तो सीमेंट के जो रेट्स है वो बढ़ गए, लेबर्स के जो रेट्स है वो बढ़ गए, ओके, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बढ़ गए, पेट्रोल के बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, ओके। दैट्स व्हाई द कॉस्ट ऑफ हाउसिंग इज इंक्रीजिंग, ओके। डिमांड तो है ही, बट इस जो सारा एक्सपेंस है वो बढ़ गया, ओके, बराबर। सो धर्मायोनी क्या होता है कि जो लेबर है, अभी क्या होता है कि सब लेबर जो होते हैं वो रेगुलर नहीं आते, ओके, क्योंकि सपोज आपके यहाँ 100 लेबर है, ओके, तो 100 में से 40 लेबर होंगे वो रेगुलर आएंगे, ओके। 60 लेबर को क्या होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, ओके, भैया आज बुखार आया है, सिर दुख रहा है, तबीयत बराबर नहीं है, शादी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बराबर। और लेबर में क्या होता है कि लेबर जो होता है वो दिन भर मेहनत करता है, ओके, 12 घंटे मेहनत करता है, और रात को के बाद में कुछ लेबर क्या करते हैं, प्रॉपर डाइट लेते नहीं, ओके, बराबर। तो ऐसा जो मिला वो खा लिया, खा के सो गए,
तो ऐसा नहीं होता है, तो उनको सबसे ज्यादा डाइट की जरूरत है, अच्छे फूड की जरूरत है उनको, बराबर। पर ऐसा होता नहीं है, वो लोग अच्छा फूड नहीं लेते, वो कुछ ना कुछ खा लिया, सो गए, ओके, तो तबीयत ऐसी खराब होने वाली है, बराबर, क्योंकि वो 12 घंटे मेहनत करते, तो उनको अच्छे फूड की जरूरत ज्यादा होती है, उनको विटामिन प्रोटीन्स की जरूरत ज्यादा होती है, ओके, तो उनको कैलोरी ज्यादा चाहिए, तो वो कैलोरी इंटेक करते नहीं है, डाइट प्रॉपर डाइट लेते नहीं है, तो उससे वो बीमार ज्यादा होते हैं, बराबर। तो जो लेबर फिट है और रेगुलर आते हैं, तो उनको ईयरली मंथली बेस पे उनको पेमेंट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड दरमायो, बराबर। तो जो वेजेस मंथली बेस पे पे किया जाता है, दैट इज कॉल्ड दरमायो, बराबर। तभी क्या होता है कि आप कोई भी इंडस्ट्री हो है, कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ओके, उनको लेबर की रिक्वायरमेंट तो रहती ही है, ओके, बराबर। तो कुछ लेबर को संभाल के रखते हैं कि भी नहीं, तो भाई और कोई नहीं आएगा, ये लेबर तो आने वाले, उनको पता है, बिकॉज दे आर द रेगुलर लेबर्स, बराबर। तो इसलिए वो लेबर को संभालते हैं कि भाई तेरे को तो आना ही है किसी भी हाल में, और कोई नहीं आएंगे, वो चलेगा, ओके, अदरवाइज उनका काम स्टॉप हो जाएगा, ओके, और उनको काम स्टॉप हो जाएगा तो उनका जो कैपिटल है, ओके, वो ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि जो उन्होंने सीमेंट ला के रखा हुआ है, उसके बाद जो कच्ची है, रेती है, ओके, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो एडवांस में वो पे कर चुके होंगे उसका पेमेंट, ओके, बराबर। जो लेबर नहीं आएगा तो काम स्टार्ट नहीं होगा, काम स्टार्ट नहीं होगा तो उनका जो गुड्स है वो वैसे ही पड़ा रहेगा, ओके, तो उनको भी बाद में चार्ज लगता है, ओके, तो इसलिए वो लेबर को संभाल के रखते हैं और मंथली बेस पे उनको रेगुलर पेमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड दरमाया, ओके। नेक्स्ट वन इज नाउ खराजात एक्सपेंसेस, ओके। खराज एक्सपेंसेस क्या होता है कि जो आप ट्रांसपोर्ट करते हो गुड्स, जो भी आपने गुड्स ट्रांसपोर्ट किया है, ओके, फॉर एग्जांपल अहमदाबाद टू बॉम्बे आपने 1000 राइस की जो बोरी है वो ट्रांसपोर्ट की, ओके, अदरवाइज आपको करनी है, तो क्या होगा कि जो बोरी है ट्रक में डालनी है, वो आप डालोगे? नो, आपके जो लेबर्स होंगे वो ट्रक में लोड करेंगे 1000 बोरी, ओके, बराबर। तो अभी क्या होता है, वो लेबर है, उसको 1000 जो बोरी है वो लोड करना है ट्रक में, ओके, तो कभी कभी वो बोरी उठाने में जल्दी जल्दी में फट भी जाता है, ओके, और जैसे बोरी फटेगा, अंदर का जो राइस है वो बाहर आ जाएगा, ओके, बराबर। तो कुछ 200 ग्राम, 500 ग्राम, किलो, 2 किलो जो आपका रास्ते में जो गिर गया है, ओके, बराबर है, तो वो सामने वाला जब काउंट करेगा बोरी, ओके, तो उसमें जो फटा बोरी होगा उसको साइड में रखेगा वो, ओके, बाद में उसका लास्ट में उसका वेटिंग होगा कि भाई इसमें से इतना जो राइस है वो कम हो चुका है, ओके, तो जो कम हो चुका है उसको क्या करेंगे वो लोग, उसका जो पैसा है वो पे नहीं करेंगे, जो कम हो चुका है उसका जो पैसा है वो पे नहीं करेंगे, बराबर। टाइम हो गया, बाकी अभी time। तो जो पे नहीं करेंगे उसको क्या कहते हैं, खराज एक्सपेंस, बराबर। जो आप उसका पेमेंट नहीं होगा क्योंकि वो तो रास्ते में गिर चुका है, सामने वाले को जितना मिला है उसका वो पेमेंट करेगा ना, जो नहीं मिला उसका वो पेमेंट नहीं करेगा, वो तो सीधी बात है, ओके, बराबर। तो पूरे साल में जितना भी आपको लॉस हुआ है एज अ खराज एक्सपेंस, ओके, दैट शुड बी रिकॉर्डेड ऑन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ओके, जितना भी आपको जो लॉस हुआ है दैट शुड बी रिकॉर्ड ऑन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड एज अ खराज एक्सपेंसेस, ओके। नेक्स्ट वन इज नाउ वारफेज, ओके। वारफेज क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कि अभी होता क्या है कि भाई अर्थ पे अ, आप बोलते हो कि मेरा वेट 40 kg है, 60 kg है, ओके, बराबर है, वो वेट क्या है, इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट जैसा कुछ भी नहीं होता है, ओके, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, बराबर। आप अर्थ पे हो, आप बोल रहे हो कि मेरा 60 kg है, आप चले जाओ सन पे चले जाओ, सॉरी मून पे चले जाओ, ओके, तो मून पे कितना ग्रेविटी होता है, 1/6 लेस हो जाता है, ओके, तो आपका मून पे कितना होगा, 60 डिवाइडेड बाय 6, 10 kg, ओके, तो मून पे आपका वेट कितना हो जाएगा, 10 kg हो जाएगा, बराबर है। तो वेट जैसा कुछ भी नहीं होता है, इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके।
वेट जैसा कुछ भी नहीं होता है, होता क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो अभी क्या होता है कि जैसे आप सी लेवल से ऊपर जाओगे ग्रेविटी कम हो जाएगा, सी लेवल से आप जैसे ऊपर जाओगे ग्रेविटी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ ग्रेविटी कम हो रहा है, तो आप जैसे फ्लैट एरिया पे आप केजी काउंट करोगे तो वहां पे गुड्स आपको ज्यादा मिलेगा। माउंटेन पे चले गए, ओके, जो सी लेवल से बहुत ऊपर एरिया है, वहां पे आप काउंट करोगे तो वहां पे केजी कम होगा, बराबर। तो ये जो डिफरेंस है, ओके, अभी फॉर एग्जांपल कि जैसे आपने एक्सपोर्ट किया कनाडा में, ओके, और कनाडा में कुछ एरिया है वो माउंटेन पे, ओके, बराबर है, तो उनको जो मिलेगा वही वो पेमेंट करेंगे। तो होता क्या है कि डिपेंड्स, अभी आपका जो प्राइस है, वेट है, तो उसमें कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, ओके, बराबर। बट जिनका जो वेट है, एग्जांपल गोल्ड है, ओके, तो उसमें तो क्या होता है कि छोटा सा 1 ग्राम का जो आप गोल्ड परचेस करोगे तो उसका भी 5,000 आपको लगता है नाउ डे, ओके। तो 1 ग्राम का भी कितना फर्क कितना होता है उसका, 5,000 का डिफरेंस आ जाएगा, ओके। और वैसे सपोज मान लो कि 25-25 ग्राम का डिफरेंस आ गया, ओके, 25 × 5 कितना होता है, 1,25,000। तो 1,25,000 का डिफरेंस आ गया, ओके। तो ग्रेविटी अलग अलग होता है हर एक कंट्री में, ओके, जैसे यानी सी लेवल से आप जितना ऊपर जाओगे उतना आपको ग्रेविटी कम हो जाएगा, ओके। तो जो वेटिंग का डिफरेंस है, आपने तो यहाँ से भेजा था, सपोज आपने गोल्ड भेजा था यहाँ से, मान लो कि चलो 1 किलो भेजा था आपने, ओके, पर वहां पे 1 किलो केजी नहीं दिखा रहा है वो, उसमें कुछ कम है, ओके, बराबर है। तो इसका जो डिफरेंस है वो आपको लॉस हो गया, ओके, दैट इज कॉल्ड वारफ्रेज, ओके, दैट इज कॉल्ड वारफ्रेज। सो वारफ्रेज इज ऑल्सो रिकॉर्ड ऑन ट्रेडिंग ऑन डेबिट साइड, बराबर। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग इज नाउ एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, ओके। तो मैंने आपको पहले बताया था कि भाई पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो है वो अलग बनाते थे, ओके, बट एट प्रेजेंट इट इज अ कंबाइंड अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ओके। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में उन्होंने प्लस कर दिया, ओके। पहले अलग से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ड्रॉ किया जाता था, उसके एक्सपेंसेस अलग से लिखे जाते थे, बट फ्रॉम लास्ट since last 5 years it is changed and it is added to trading account, okay. So here expenses relating to production to first उसमें है प्रोडक्टिव वेजेस, okay. प्रोडक्टिव वेजेस में क्या है कि 2 मिनट को मैसेज आया मेरे को, हाँ, सो यहाँ पे जो दिया है प्रोडक्टिव वेजेस, ओके। अभी वेजेस तो आपने सुना था, ओके। प्रोडक्टिव वेजेस क्या होता है कि जो लेबर डायरेक्टली मशीन पे बैठता है और रॉ मटेरियल में से उसको फिनिश करता है, ओके, बराबर है। तो उसमें जो उसका आपको वेजेस पे करते हो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिव वेजेस, बराबर। क्योंकि वेजेस तो आपने सुना था, ओके, बराबर। तो प्रोडक्टिव वेजेस क्या होता है कि जो लेबर रॉ मटेरियल में से फिनिश में कन्वर्ट करता है, ओके, जो लेक्चर इज ओवर।